Okay, students. So let us start. Yes. So last lecture we were discussing about types of contract on the basis of validity, or you can say on the basis of enforceability. And I think the first type of contract we discussed was valid contract. Very easy. Then we discussed void contract. Then we discussed voidable contract. We have also seen the difference between voidable and void contract. I hope you remember the difference between void agreement and void contract also. Okay, then we discussed the fourth type of contract on the basis of validity, that was illegal contract. Okay, बच्चा illegal contract जो हमने डिस्कस किया था, you can say, if you can remember the other things also, illegal contract को आप बोल सकते हो contract which is void ab initio. You can say that in this, बनते ही void हो जाता है. Illegal contracts are those contracts which is forbidden by law. Law forbid करता है कि आप ये contract ना बनाएं. We already discussed all the things, and then we were discussing some distinctions or difference between, okay, uh, illegal contracts and void contracts. I think on the screen you can see the example we have discussed last lecture, or that was brown sugar, and also an SR agrees to with S to purchase brown sugar. It is illegal agreement because brown sugar is a commodity which is prohibited by law. इसलिए आप ऐसे बैंड गुड्स को लेकर कोई एग्रीमेंट करोगे तो लॉ उसे इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी समझता है, एंड देयरफॉर वो इलीगल इन नेचर है, ऐसा प्रूव कर दिया जाता है. सो एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज इलीगल इन नेचर, ओके, cannot be enforced in the court of law, and hence we call it as illegal contracts. Okay, and then we discussed that very famous statement कि all illegal contracts are always void, but void contract जरूरी नहीं है कि वो illegal हो. void बनने के और भी reasons हो सकते हैं. I hope you understand this, and we have discussed that earlier also. जैसे कि void contract बनने के और भी reasons हो सकते हैं, जैसे कि impossibility of performance, स्टार काउंट करना. स्टार वाला एग्जांपल आपको याद होगा तो वो उसमें कोई इलीगल नहीं था, बट वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड था. ओके, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि हर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, बट हर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो ये कोई जरूरी नहीं है. ओके, सो अलग अलग पॉइंट्स आई थिंक हम लोग डिस्कस कर रहे थे. सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी दैट आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड, आई थिंक ए और बी. ओके, जरा टाइप कीजिए क्या क्या डिस्कस किया था, कहाँ तक. एग्जाम्पल आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड. Then what about an difference scope and nature? I think I have discussed. Yes, student, to last lecture. किसी ने मार्किंग किया होगा, लिखा होगा कुछ. नो, ओके, नो प्रॉब्लम. एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा हूँ सबको? टाइप करो एक दो लोग. यस, ओके ओके. सो आई थिंक लेट अस स्टार्ट देन. बच्चा स्कोप, नेचर एंड कैरेक्टर. ओके, इसमें क्या था स्कोप में? ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स और वॉइड, अभी अभी जो डिस्कस किया बच्चों. However, all void agreements are not illegal. Despite this, there is similarity between illegal and void agreements, that in both the cases, it is void ab initio and cannot be enforced by the law. Meaning that actually scope में उन्होंने जो void
कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला, एक्चुअली दे हैव नॉट यूज्ड द वर्ड void contract, they have used the word void agreements. And I hope you remember, void agreements are those agreements which are void ab initio, and void contracts are those contracts which are initially valid but later on due to some reasons they become void. I hope अभी मैं ये जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, ये लैंग्वेज अभी आपके थोड़े पल्ले पड़ रहा है, बराबर. दैट इज व्हाई आई वाज डिस्कसिंग वेरी स्लो, कि जब मैं वापस जब एक्चुअल लैंग्वेज यूज करने को चालू करूँ थोड़ा फास्ट में, तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो यहाँ पर they are discussing between illegal agreement and illegal agreement and void agreement. So illegal agreement and void agreement की similarity क्या है? Both are void ab initio. But difference क्या है? All illegal agreements are void, but every void agreement जरूरी नहीं illegal हो. That is the first point they have discussed in the scope. Okay. Second, nature and character. What is the nature and character of these agreements? So as I said, illegal agreements are void ab initio. Okay. So what is they have written? Again, same thing. Repeat हो रहा है. Illegal agreements are void since the very beginning. They are invariably described as void ab initio. And you know the word void ab initio, बराबर है. Void ab initio के examples illegal contract है, contract with minor है. यानी ये वो एग्रीमेंट्स है जिसको बनते ही डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये वॉइड है. As already emphasized under the scope, contract by nature which is valid can subsequently मतलब आगे चल के change its character and become void. I think all these things I have already discussed. That means in point number B, I am not talking about illegal, sorry, I'm not talking about void agreement, but I'm talking about void contract. And I hope you, the students, know the difference between void agreement and void contract. So nature and character में they are discussing about void contract, जो initially valid होता है and आगे चल के void बन जाता है. बच्चों, am I going fast? कुछ डाउट होगा तो you are welcome. हाँ, आप पूछ सकते हो उसको डाउट. Yes, any doubt? जल्दी से जरा रिस्पॉन्ड दो. प्रिया नो. ओम, धवल, हितेन, कुसुम. ओके. यस बच्चों, ठीक. सो we have already discussed scope and nature and character. Let us discuss third point. I hope you remember collateral transaction. बच्चों, कोलेटरल ट्रांजैक्शन मतलब मेन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक और ट्रांजैक्शन. जैसे फादर, तो फादर से रिलेटेड बेटा, ऐसा. कोलेटरल ट्रांजैक्शन, कोलेटरल मतलब सपोर्टिंग ट्रांजैक्शन टू द मेन ट्रांजैक्शन, सपोर्टिव ट्रांजैक्शन. कोलेटरल ट्रांजैक्शन का रीजन है मेन ट्रांजैक्शन, बरोबर है. कोलेटरल ट्रांजैक्शन, अगर याद होगा लास्ट लेक्चर, तो मैंने कहा था कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड and therefore any related contract to an illegal contract also becomes void. पिताजी void है तो बेटा भी void illegal contract में. But as far as void contracts are concerned, you know, void contracts are initially they are valid but later on they become void. But this is a very big difference between these 2 points. But you have to understand, you have to clear this concept. void contract में क्या होता है? void, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. void contract में अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, आगे चल के void बन जाता है, तो उससे रिलेटेड कोलैटरल ट्रांजैक्शन जरूरी नहीं कि वो भी void हो जाए. आई रिपीट, जरूरी नहीं कि वो भी void हो जाए. So what you are supposed to understand in point number C, that if you have illegal contracts,
उसके कोलैटरल ट्रांजैक्शन आल्सो बिकम्स इलीगल। एंड इफ यू हैव वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जरूरी नहीं कि उसके कोलैटरल ट्रांजैक्शंस आर वॉइड, हो सकता है वो वैलिड हो। पॉइंट नंबर सी में कोई डाउट बच्चों? मैंने अभी जो बताया क्लियर किया, अभी रीड करता हूँ। ओके, कोई डाउट हो तो पूछो। आर यू गेटिंग दिस स्टेटमेंट व्हाट आई हैव डिस्कस राइट नाउ? सो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। मैंने पहले भी कहा है कि आप रटते मत बैठो बच्चों, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए स्टूडेंट हो, आप बाय हार्ट करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे ज्यादा। ओके, यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, पुट इट इन योर ओन वर्ड्स। सीएस इंस्टीट्यूट वो पढ़ेंगे जब आपका आंसर एंड देखेंगे कि यस आइडिया इज क्लियर, दे गिव द मार्क्स। ओके, सो लेट अस रीड दैट पॉइंट नंबर सी। थोड़ा टफ है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना इसको। इन केस ऑफ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इवन द कोलैटरल ट्रांजैक्शंस, बच्चों व्हाट इज कोलैटरल? उस इलीगल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, namely transactions which are to be complied with before or after or concurrently, concurrently मतलब simultaneously, along with main contract also become not enforceable, also become not enforceable, शब्दों पे ध्यान दीजिए। also become not enforceable, please type what do you mean by that, also not become enforceable, टाइप करो बच्चों। व्हाट डू यू मीन बाय दैट स्टेटमेंट? वॉइड, दिशा ने आंसर दे दिया है। ओके, वॉइड, यस हितेन, क्राइस, चेतना, कुसुम, देवांशु, यस एवरीवन हैज गिवन करेक्ट आंसर, वेरी गुड। इन कंट्रास्ट यानी उसके अपोजिट में अगर हम देखें तो बच्चों यहाँ पर आई थिंक क्या लिखा है? इन कॉन्ट्रास्ट इन केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, आई थिंक वॉइडेबल, यू आर गेटिंग डिस्कसिंग डिफरेंस बिटवीन व्हाट? अच्छा, वॉइडेबल actually illegal na? Anyway, let us compare with voidable. In contrast, in case of voidable contracts, the collateral transactions can be enforced despite the fact that the main contract may have become voidable, to the extent the collateral transactions are capable of being performed independently. बच्चों, ये जो मैंने अभी कहा voidable contract या void contract हो, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, उससे रिलेटेड कोलैटरल ट्रांजैक्शंस, if they are capable of being performed independently, okay, if they can be separated from main contract, they become valid. I repeat the word, they become क्या बोलो? Valid. Okay, so basically हम डिफरेंस पढ़ रहे थे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, बट यहाँ पर दे हैव यूज्ड द वर्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअली दे शुड हैव यूज द वर्ड वॉइड, क्योंकि आप नीचे देखोगे तो समरी में आप देख सकते हो वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट लिखा है, देखो। मुझे लगता है ये आई थिंक आपके सीए इंस्टीट्यूट का एक टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके, आई होप यू गेट दिस पॉइंट व्हाट आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ। आपके देखो ना, तीसरे पॉइंट में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल हुआ है, जबकि दे शुड हैव गिवन द वर्ड वॉइड। एनीवे, ओके, आपको क्लियर हो गया ना? दैट्स ऑल बच्चों। द लास्ट डी पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो इट इज रिगार्डिंग द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज penalty or punishment. You know penalty word, you know it is a fine imposed by government under any act, है ना? आप स्कूटर चला रहे हो बिना लाइसेंस के, आरटीओ ऑफिसर ने पकड़ लिया, आपका चालान कर दिया, है ना? तो ये क्या हो गया? आपसे पेनल्टी ले ली, आपने पेनल्टी नहीं भरी तो आपको जेल में डाल देंगे। दिस इज व्हाट वी यूज द वर्ड पनिशमेंट। तो आइदर पेनल्टी और पनिशमेंट और बोथ। अच्छा, आपने अगर लोकल ट्रेन में ट्रेवलिंग किया होगा तो उसमें देखो कभी नोटिस दिखता है हमको,
हमको नोटिस नजर आता है, देखो कभी लिखा रहता है कि बिना रीजन के अगर आप ट्रेन का चेन पुलिंग करोगे तो आपको 1,000 रुपए का दंड, अथवा अथवा मतलब और 3 महीने की जेल हो सकती है या दोनों। तो बच्चों ये 1,000 इज नथिंग बट पेनल्टी, 3 महीने की जेल इज नथिंग बट पनिशमेंट, कभी कभी दोनों, है ना, बहुत अच्छी बात है दोनों। सो इफ आई टेक इनटू कंसिडरेशन illegal contract and void contract, then the basis of difference is penalty and punishment. So as you know, illegal contracts are nothing but the contracts to commit crimes, and crimes को हमारा लॉ फोरबिड करता है। सबको मालूम है कि आप कोई क्राइम करोगे तो इट इज पनिशेबल, बराबर है, पढ़ाई के अंडर लिए आवर। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। बराबर है, अंडर आवर इंडियन पेनल कोड प्रोसीजर। ओके, आपको जेल भेजा जा सकता है, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। सो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स इफ प्रूव्ड, तो यहाँ सजा हो सकती है, पनिशमेंट हो सकती है, पेनल्टी भराई जा सकती है। वेरस अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें कोई इलीगैलिटी ना हो, बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम टॉकिंग प्योरली ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है, उसमें कोई पेनल्टी या पनिशमेंट की प्रोविजन नहीं है। ओके, so that is what you have to understand. So let us read that 2 lines. If you have any doubt, बच्चों you have to ask the डाउट आएंगे, आप देख ही रहे हो अभी लास्ट 5-6 लेक्चर्स जो हमारे हो गए हैं, लैंग्वेज की लेवल आप समझ ही गए होंगे। बट डरना नहीं है आपको, कि जितना आप ये सुनोगे लेक्चर को, रीडिंग रखोगे, उतना आपका, आप समझ लीजिए नेक्स्ट लेवल जो है सीए एंड सीएस का, वो इजी हो जाएगा आपको। ये बेस है, आपको तकलीफ तो होगी, बट एक बार आपको क्लियर हो गया, आपको अच्छा लगने लगा लॉ का लैंग्वेज, तो आगे चल के आपको बहुत इजी हो जाएगा सब्जेक्ट्स। सो ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर पनिशेबल, बच्चों क्लियर कट लिखा है, देखो ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर पनिशेबल अंडर डिफरेंट लॉज लाइक इंडियन पेनल कोड। बच्चों इंडियन पेनल कोड, आप जैसे कि वकील आप देखते हो कैसे बचाते हैं गुनहगारों को, दैट इज नथिंग बट अंडर इंडियन पेनल कोड। इफ यू आर कमिटिंग एनी मर्डर, यू विल बी हैंग्ड टिल डेथ, दिस इज रिटन इन इंडियन पेनल कोड। ये भी एक ब्रांच ऑफ लॉ है जो क्राइम से रिलेटेड है। whereas we are discussing commercial law, business law, under which we are discussing Indian Contract Act. So Indian Contract Act is not criminal law, it is business law, whereas Indian Penal Code is a criminal law. यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड होता है कि आपने अगर कोई भी इमोरल एक्टिविटी की तो आपको सजा दी जाएगी। नेक्स्ट लाइन देखो आप, whereas party to void agreements do not face such penalty or punishment. Okay, do not face such penalty or punishment. So I think नीचे समरी दी गई है, आप वापस एक बार पढ़ेंगे तो आपको ऊपर जो लिखा था बच्चों वही समझ में आ जाएगा। आप ऐसा कीजिए, स्कोप, नेचर एंड पनिशमेंट जाने दीजिए, डायरेक्टली यू रीड दिस फोर्थ पॉइंट, कोलैटरल एग्रीमेंट। कोलैटरल एग्रीमेंट पढ़ो क्या लिखा है, देखो वॉइड एग्रीमेंट में, it is not necessary that agreements collateral to void agreements may also be void. Try to understand this statement, how they have written. वो सीधा नहीं लिख रहे कि void है, valid है, वो बोल रहे हैं कि
जरूरी नहीं वॉइड हो। देखो हम बच्चों, लॉ की भाषा देखो कैसी है। सीधा नहीं बोल रहे कि वैलिड, लास्ट लाइन में बोल दे इट इज वैलिड, इट मे बी वैलिड ऑल्सो। मे वर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों। वैलिड हो सकता है, वैलिड ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई वॉइड एग्रीमेंट होगा, उससे रिलेटेड कोई कोलैटरल ट्रांजैक्शन होता है, तो वो कोलैटरल ट्रांजैक्शन जरूरी नहीं वॉइड होगा, जरूरी नहीं वॉइड होगा, वो वैलिड भी हो सकता है। ओके, एंड इलीगल एग्रीमेंट्स में पढ़ो, एग्रीमेंट्स कोलैटरल टू इलीगल एग्रीमेंट्स में नहीं लिखा है, क्या लिखा है, आर ऑलवेज वॉइड, आर ऑलवेज वॉइड। ओके, तो बच्चों दिस इज व्हाट द डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो ईच एंड एवरी वर्ड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, स्पेशली द चैप्टर नंबर 1, क्योंकि ये हमारे आने वाले लेक्चर की लैंग्वेज है। ओके, अब मैं 2 लेक्चर बाद, 3 लेक्चर बाद इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगा, तो आपको मीनिंग नहीं पूछना पड़ना चाहिए मेरे से कि सर व्हाट डू यू मीन बाय इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। Okay, and now on the basis of validity, we have the last type of contract under this category. You can see on your screen, unenforceable contract. नाम से ही जाहिर है, कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। तो आप बोलेंगे सर ये तो वॉइड का मीनिंग हो गया, डेफिनेशन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का वही है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। यस यू आर राइट, बट यहाँ पर दे हैव यूज्ड द वर्ड अनएनफोर्सेबल। अनएनफोर्सेबल मतलब क्या है कि जब दो लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना दो लोगों के बीच में, दैट इज एक्चुअली, एक्चुअली आप देखेंगे तो इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो एक प्रकार की वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही होती है, बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट। अब आप पूछेंगे सर ये टेक्निकल डिफेक्ट क्या है। ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट, कभी कभी वो कॉन्ट्रैक्ट को हमारी कोर्ट जो है वो अमान्य कर देती है, मानने से मना कर देती है, एनफोर्स नहीं करती। जैसे कि बच्चा, आई गिव वन एग्जांपल, आई थिंक दैट विल बी मोर प्रैक्टिकल एग्जांपल, जो आई थिंक सबको मालूम होगा, कि हम जब चेक पे साइन करते हैं या डेट लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, देखो ना, अगर हम ओवर राइटिंग कर देते हैं उसके ऊपर, ओवर राइटिंग, गलती से आपने ओवर राइटिंग कर दिया, योर इंटेंशंस आर गुड, बट लिखते समय कुछ मिस्टेक हो गया ना, आपने ओवर राइटिंग कर दिया, तो इसका मतलब आप सामने वाले से कोई फ्रॉड कर रहे हैं क्या? नो, योर इंटेंशंस आर गुड, बट आपने चेक पर ओवर राइटिंग कर दिया, सिग्नेचर मैच नहीं हुआ, डेट में ओवर राइटिंग कर दिया, तो ये ऐसा चेक जब बैंक में जाएगा, तो बैंक क्या करता है, उस चेक को डिसऑनर कर देता है। आपने इवन बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा होगा, जब आपको पढ़ाया गया होगा, अकाउंट्स टीचर ने बोला होगा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उसमें लिखा होगा क्लियर कट कि बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते समय ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर राइटिंग हो गई तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज हॉनर नहीं होगा, मतलब अचानक वो बिल ऑफ एक्सचेंज अनएनफोर्सेबल माना जाएगा। जबकि आपका इंटेंशन, ड्रॉवर ड्रॉई का इंटेंशन, ड्रॉई का इंटेंशन जो है, ड्रॉवर का इंटेंशन जो है वो एकदम सही है, कोई किसी से फ्रॉड नहीं करना चाह रहा है, बट एक टेक्निकल डिफेक्ट हो गया। मैंने तो एक बार एक को चेक दिया था बच्चों, अमाउंट डाल दिया, डेट लिख दिया, सब लिख दिया, सामने वाले को चेक दे दिया मैंने उसको, वो बैंक में जाके मुझे फोन करता है कि सर आप साइन करना भूल गए। तो क्या मैं कोई कोई मतलब उसके साथ फ्रॉड कर रहा हूँ क्या? नहीं, एब्सेंस ऑफ माइंड, भूल गया, उसने भी ध्यान नहीं दिया जब मैंने चेक लिया है, साइन नहीं है करके। तो बताइए वो चेक कभी हॉनर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सो where the contract is good in substance, you can now understand the meaning. Where the contract is good in substance, that means it contains all the essential elements of valid contract, but because of some technical defect, which I hope you are getting that statement, because of some technical defect, and बच्चों technical defect क्या हो सकता है?
एब्सेंस इन राइटिंग, जैसा मैंने कहा सिग्नेचर करने को ही भूल गया मैं, है कि नहीं? आई थिंक उसके पहले एक डाउट आ रहा है, धवल, क्या डाउट है बेटा? सर अगर इलीगल काम किसी और के थ्रू हुआ होगा तो देखो, आप चाहे खुद मर्डर कीजिए या किसी से करवाइए, आपको सजा मिलनी ही मिलनी है। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आपने नहीं किया, कोई और कर रहा है, तो जिसने किया, दैट पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल, बट ओनली यू हैव टू प्रूव कि उसने जो किया वो मेरे कहने पर नहीं किया है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, धवल? ओके, सो अनएनफोर्सड एब्सेंस इन राइटिंग है, जिसको हम कहते हैं ओवर राइटिंग भी हो जाती है कभी कभी, बार्ड बाय लिमिटेशन। बच्चों अगर आप कुछ लिखने के लिए मटेरियल वहां रखे हो, लिखने या कुछ नोटबुक या कुछ नोट डाउन कर रहे हो, अगर कुछ कर रहे हो, करना चाहिए थोड़ा, तो एक नया वर्ड आ गया जो आपको आगे बहुत बार आएगा बच्चन, बहुत काम का वर्ड है, बार्ड बाय लिमिटेशन। जरा सुन के रखो एंड ओन वर्ड्स में लिख के रखो इसका मीनिंग। बच्चों बार्ड बाय लिमिटेशन का मतलब हमारे इंडिया में लिमिटेशन एक्ट भी है। आप बोलेंगे ये क्या आ गया सर नया एक्ट, लिमिटेशन एक्ट? तो बच्चों आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई थिंक अगेन द बेटर एग्जांपल इज बिल ऑफ एक्सचेंज। बच्चों मुझे ये बताओ, जब आंसर लिखना है अभी आपको टाइप करना है, जब ड्रॉई ड्यू डेट के दिन बिल हॉनर नहीं करता, परंतु उसके बाद ड्रॉवर ड्रॉई के ऊपर कोर्ट में केस कर सकता है क्या? लिखो, कोर्ट में केस हो सकता है क्या? यस। सबको मालूम है कि उसके बाद फिर ड्रॉवर क्या करेगा, बिल डिसऑनर हो जाने के बाद फिर ड्रॉवर क्या करेगा, बिल का नोटिंग करेगा, प्रोटेस्टिंग करेगा, कोर्ट में ले जाके रखेगा बिल को, फिर कोर्ट हेल्प करेगा उसको पैसा रिकवर करने के लिए। आई थिंक ये सब सारी चीजें मालूम है आपको। मेरा प्रश्न ये है कि एक ड्रॉवर को ड्रॉई के ऊपर पैसा रिकवर करने के लिए केस करने का राइट मिलता है, बरोबर है? राइट टू फाइल सूट। ये कितने साल तक मिलता है? कुछ पढ़ाया गया आपको कहीं कॉलेज वगैरह में, क्लासेस में? कितने साल तक एक ड्रॉवर ड्रॉई के ऊपर केस कर सकता है? रितेश 3 साल लिखा है, पार्थ ने 3 साल लिखा है। बच्चों एग्जैक्टली आप जो आंसर दे रहे हो, दिस इज लिमिटेशन एक्ट, दिस इज बार्ड बाय लिमिटेशन। वेरी गुड। 3 साल तक टाइम मिलता है ड्रॉवर को ड्रॉई के ऊपर केस करने का एंड अपना पैसा रिकवर करने का, लीगली। इलीगली नहीं बच्चा, इलीगली क्या फटकाएगा, मारेगा, फिर पैसा वसूल करेगा, वो सब छोड़ो। वी आर टॉकिंग लीगली। 3 साल, लेकिन अगर 3 साल कंप्लीट होना हो गया एंड ड्रॉवर ने अगर केस नहीं किया ड्रॉई के ऊपर, तो 3 साल के बाद ड्रॉवर ड्रॉई से पैसा लीगली रिकवर नहीं कर सकता। वो बिल ऑफ एक्सचेंज इज बार्ड बाय लिमिटेशन। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द वर्ड बार्ड बाय लिमिटेशन, बार्ड बाय लिमिटेशन। तो तो मान लीजिए बच्चों, फॉर एग्जांपल आई एम अ ड्रॉवर, राहुल सर इज ड्रॉई, मैंने उनके ऊपर बिल ड्रॉ किया था, उन्होंने डिसऑनर कर दिया बिल। आपको टाइप करना है आंसर अभी। उन्होंने बिल डिसऑनर कर दिया, पर मैंने उनको क्या किया, 3 साल एंड 2 महीने के बाद मैं केस करने गया। बिल डिसऑनर होने के बाद 3 साल एंड 2 महीने के बाद मैं उनके ऊपर केस करने गया कोर्ट में। क्या कोर्ट वो केस एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। एंड बच्चों
ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, हॉनर नहीं करेगा, इसका रीजन क्या था? इलीगैलिटी था क्या? इसका रीजन क्या था? इलीगैलिटी था? नहीं, इसका रीजन था बार्ड बाय लिमिटेशंस। यस, कहीं ना कहीं मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज जो है दैट इज गुड इन सब्सटेंस, दैट इज गुड इन सब्सटेंस, बट नाउ इट हैज बीन बार्ड बाय लिमिटेशन। बच्चों ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रखना है वर्ड को। सी एस बनेंगे, ये शब्द आपके सामने बहुत बार आएगा। कॉमन मैन को नहीं समझता है बच्चों, इसलिए तो कॉमन मैन आपके पास आएगा आपसे कंसल्टेंस करने के लिए। आप उनको कंसल्टेंसी दोगे या ना, आप अपना फी चार्ज करोगे, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गेट दिस वर्ड। वक्त जा रहा है लेकिन मुझे लगता है एक एक वर्ड आपको क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। किसी बच्चे को डाउट अब तक? ओके, ओम, नो कोई डाउट, ठीक है। तो बच्चों अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट अभी भी हम पढ़ रहे हैं। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस दैट मीन इट हैज ऑल द essential elements of valid contract, but because of some technical defect, absence in writing, or you can use the word overwriting, barred by limitations, etc., etc. Okay, one or both the party, चाहे एक या दोनों, cannot sue upon it, cannot sue upon it, केस नहीं कर सकते, ये हॉनर नहीं होगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। It is described as an unenforceable contract. Unenforceable contract. Okay. Yes. Now, so बच्चों, on the basis of validity or on the basis of enforceability, we have discussed 5 types of contract. Just to sum up, एक बार वापस याद दिला दूं: valid contract, void contract, voidable contract, illegal contract, unenforceable contract. Okay, ज्यादा वक्त लिया हमने, but I hope this is clear. Okay, so let us discuss now the next basis. Okay, let us differentiate contracts on the basis of another base, you can say that. Now the we are discussing same point. Okay, types of contract अब हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस बार द बेसिस होगा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है, हाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। ओके, बिफोर आई स्टार्ट आपसे पूछना चाहूंगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है बच्चों? कैसे बनेगा? बोलकर बनता है क्या? ओरली, ओरली, ओरली बनता है क्या कॉन्ट्रैक्ट? हाँ बनता है, आप नो मत बोलिए। ओरली बनता है, राइटिंग में होता है, बरोबर है, सब कुछ पॉसिबल है। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस नाउ। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड basis of differentiation, and that basis is formation of contract. So if I take formation of contract as a basis, we are going to discuss 3 to 4 types of contracts in this category also. And the first type is the express contract. The word express indicates what? Expression. Expression मतलब अपनी बात सामने तक पहुंचाना। एंड अपनी बात सामने तक आप कैसे पहुंचाओगे? या तो बोलकर या तो लिखकर। ओके, हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस? या तो बोलकर या तो लिखकर। सो एनी कॉन्ट्रैक्ट जो दो लोगों के बीच में होता है, यूजिंग वर्ड्स, शब्दों का इस्तेमाल, यूजिंग वर्ड्स आइदर रिटन और स्पोकन। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बच्चों, आइदर रिटन और स्पोकन। ऐसे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। सो कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग वर्ड्स आइदर रिटन, लिखकर, या स्पोकन। दैट इज व्हाट आई वाज यूजिंग द वर्ड ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स। ओरली भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबान की भी कीमत होती है बच्चों बिजनेस में।
क्या आपने सुना होगा, मेरी जबान की कीमत नहीं है क्या, ऐसा डायलॉग मारते हुए लोग मिलते देखो आपको, बराबर। दैट इज व्हाट वी से एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, वेरी इजी, इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। सो व्हाट इज द वर्डिंग्स यूज्ड हियर टू डिफाइन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट विच वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो लोगों के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जाहिर बात है जब हम किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो एक दूसरे को कुछ प्रॉमिस करते हैं। क्या प्रॉमिस करते हैं? कि हमारे बीच में ये टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे जिसे आगे चल के पूरा करना है, दैट इज द एग्रीमेंट। इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और इन राइटिंग, बाय वर्ड्स और इन राइटिंग, इसके लिए मैंने शब्द यूज किया था, when contract is formed by using words either written